ব্যাপারটা দেখলেন যে এই রাজস্থানের টং সাওয়াইয়ের এই যে কেন্দ্র, যে লোকসভা কেন্দ্র, সেখান থেকে কিন্তু একের পর এক আক্রমণ শানালেন সেই জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো খুব স্বভাবতই এবার মনে একটা প্রশ্ন উঠছে যে এই যে লোকসভা কেন্দ্র, এটা বিগত বছরগুলিতে, মানে ঠিক এর লোকসভা কেন্দ্রতে ঠিক বিগত বছরগুলিতে কার দখলে কি ছিল। একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখুন, ঠিক 2019 সাল যেখানে বিজেপি জয়ী হয়েছিল এক্ষেত্রে এই লোকসভা কেন্দ্রে, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রাপ্ত ভোট কত ছিল, 6,44,319, এবং তার মধ্যে কংগ্রেস কিন্তু পরাজিত হয়েছিল, এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ছিল কত, 5,33,028। তাহলে জয়ের ব্যবধান কত দাঁড়াচ্ছিল, 1,11,291 ভোট। অর্থাৎ এই জায়গা থেকে একটা ব্যাপার পুরো পরিষ্কার, যেখানে কিন্তু বিজেপি এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছে এই রাজস্থানের টং। আর সেই জন্যই হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার তার এই শক্ত ঘাঁটিকে আরো সেখান থেকে কিন্তু জনসভা থেকে বারবার ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন, কংগ্রেসকে বিদ্ধ করছেন। ঠিক এরই পাশাপাশি আমরা আরো একটুখানি পেছনের দিকে যাব, মানে 2019-এর পরে 2014 সেখানে কি হয়েছিল। 2014 তো সেখানেও কিন্তু বিজেপি জয়ী হয়েছিল, যেখানে প্রাপ্ত ভোট ছিল 5,48,537, এবং যেখানে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল 4,13,031, এবং জয়ের ব্যবধান ছিল 1,35,506 ভোট। এটা গেল 2014। আমরা আরো একটু 5 বছর পেছনে যাব, 2009, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে কি কংগ্রেস 2009 সালে সেখানে কংগ্রেস কিন্তু জয়ী হয়েছিল রাজস্থানের এই টংকে, যেখান থেকে এবার আক্রমণের ঝাঁঝ আরো বাড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ছিল 3,75,572, এবং বিজেপি ছিল 3,75,255। মাত্র 317টি ভোটের একটা ব্যবধান ছিল। 317টি ভোটে কোথাও গিয়ে বিজেপিকে পেছনে ফেলে কংগ্রেস এগিয়ে এসেছিল। মানে তারপর থেকে কিন্তু ঠিক এই জায়গা থেকে কোনো রকম ভাবে ঘাঁটি আর গাড়তে পারেনি কংগ্রেস। তারপর থেকে পরপর 2 বছরই, মানে দুটো যে লোকসভা ভোট হয়েছে সেখানে কিন্তু বিজেপি জিতেছে। আর এবারে হচ্ছে 2024। তাহলে এবারে কি হয় সেটাই অবশ্যই দেখার, এবং অবশ্যই এরই পাশাপাশি পরের খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, যেখানে আপনাদেরকে বারবার বলছি যে 26শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট রয়েছে, এবং তার আগে বিরোধীদের একাধিক ইস্যুতে বার্তা দিচ্ছেন একদিকে প্রধানমন্ত্রী, তো অন্যদিকে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তো কি বার্তা তিনি দিলেন দেখুন। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। कानून का सवाल है। चिदम्बरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। 3 कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी, और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुंचे। उनको न्याय लंबित हो, उसमें इंटरेस्ट है। मगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। हर नागरिक का कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद्ध है। कांग्रेस न सत्ता पर आनी है, न इनको ये फैसले करने हैं कि बहुत बार हार चुके आप चुनाव। अपीसमेंट की पॉलिसी से बाहर आइए और विकास के एजेंडे पर परफॉर्म करने का प्रयास करिए। এটা তো শুনলেন যে ঠিক এই ভোটের ইস্যুতে এবং একাধিক ইস্যুতে অমিত শাহ কি বললেন। ঠিক এরই পাশাপাশি আপনাদেরকে শোনাতে চাইবো যোগী আদিত্যনাথ তিনি কি বলছেন, যখন দ্বিতীয় দফা ভোট এবং তার আগে একটি সাক্ষাৎকারে মোদী সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন যোগী আদিত্যনাথ, এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টিকে কিন্তু এক বন্ধনীতে রেখে চড়া সুরে বিঁধলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। দেখুন। गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया, और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से
प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो, फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है, और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। 2.5 करोड़ परिवारों ने, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। वास्तव में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा तो सबका विश्वास है, सबका प्रयास है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले हुए थे। दर्जन भर जिलों में आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इनसे जुड़े हुए लोग गरीबों का राशन हड़प कर जाते थे। जब 2017 में मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला था, इस दौरान मैंने स्वयं जब इस बात की जांच कराई थी, 30 लाख फेक राशन कार्ड पाए गए थे, और ये फेक राशन कार्ड के नाम पे राशन निकलता था। राशन की सुविधा गरीब को नहीं मिलती थी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को मिलती थी, या उनके द्वारा प्रश्रय प्राप्त माफिया, ये सभी राशन हड़प जाते थे। इंडी गठबंधन के किसी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए, और किसी को नहीं आना चाहिए। ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीति को अपने बपोती मान करके चले थे। जाति विभाजन के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। समाज में सामाजिक न्याय को तार तार करने का प्रयास किया। सामाजिक वैमनस्यता ये लोग पैदा करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। ये देश कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य उनके सहयोगी दल हो, इनकी इस मंशा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो देशवासियों को उभार नहीं पाए। 2004 से 2014 के बीच में भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और पार्टी देश में शासन कर रही थी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। और आज जब कार्य हो रहा है तो आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता लोकतंत्र में जनार्दन का स्वरूप है। वह कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को समझती है, और उन्हें देश के नागरिकों की इस संपत्ति पर डकैती डालने की छूट नहीं देगी।